মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায় বাবরি মসজিদের শিলান্যাস করেছেন ভরতপুরের সাসপেন্ডেড তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবির। এ নিয়ে রাজ্য জুড়ে প্রবল সমালোচনা হয়েছে, এমনকি হুমায়ুনকে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে দল থেকে সাসপেন্ডও করা হয়েছে। এবার এ নিয়ে মুখ খুললেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রধান মোহন ভাগবত। কলকাতায় সংঘের শতবর্ষ উপলক্ষে সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামের একটি অনুষ্ঠানে রবিবার 21শে ডিসেম্বর সংঘপ্রধান মোহন ভাগবত বলেন, মন্দির মসজিদ বিতর্কের মধ্যে অনেক সময় নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট একটি রায় দিয়েছে। সেই রায়ের পরে অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মিত হয়েছে, এখানেই মন্দির মসজিদ নিয়ে ঝগড়া শেষ, কিন্তু ফের বাবরি মসজিদ গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। এই উদ্যোগ আসলে ভোট লোভীদের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, এতে হিন্দু ও মুসলিম কারো ভালো হবে না। তিনি বলেন, বাবরি মসজিদ পুনর্নির্মাণ আসলে অতীতের বিতর্ক নতুন করে উস্কে দেওয়ার একটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। এই মসজিদ নির্মাণ আসলে ভোট লোভীদের রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির পন্থা, তবে এর ফলে হিন্দুদের বা মুসলিমদের কারো ভালো হবে না। পাশাপাশি তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, সরকারি অর্থে ধর্মস্থান নির্মাণ করা কি উচিত? জবাবে মোহন ভাগবত বলেন, সরকারি টাকায় ধর্মস্থান নির্মাণ একেবারেই উচিত নয়, এটাই নিয়ম। এ প্রসঙ্গে সোমনাথ মন্দিরের প্রসঙ্গ টানেন তিনি। মোহন ভাগবত বলেন, এই মন্দির ট্রাস্টের টাকায় হয়েছিল। সেই সময় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন, রাষ্ট্রপতি এর উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু এখানে সরকারি অর্থ ব্যবহার করা হয়নি। একইভাবে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর রাম মন্দির তৈরি করা হয়েছিল, সরকারকে একটি ট্রাস্ট গঠন করতে বলা হয়েছিল, সেই ট্রাস্টের মাধ্যমেই রাম মন্দির তৈরি হয়। এখানে কোনো সরকার বা সরকারি অর্থ ছিল না, আমরা সকলেই রাম মন্দির প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখেছি। आरएसएस प्रधान मोहन भागवत की बोलेছেন सार्विक विषय শোনাবো। जैसा मैंने कहा, तो मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि वो पूजा से अलग है, लेकिन संस्कृति, राष्ट्र, समाज के नाते, देश के नाते एक ही बड़ी इकाई के अंग है, ये उन्होंने कहना चाहिए। ये समझने से सब ठीक हो जाएगा, बाकी कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। तो अब दूसरी बात है, यानी ये होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है कि एक झगड़ा चल रहा था, अंत में कोर्ट के हवाले कर दिया कि भाई आप निर्णय करो। कोर्ट ने बड़ा लंबा समय लगाकर बहुत ही विचार किया होगा ना, इतना लंबा समय लगाया तो, और एक निर्णय दिया, तो वहां राम मंदिर बन गया। तो ये मंदिर मस्जिद वाला झगड़ा वहां समाप्त हो गया, बाबरी मस्जिद। अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। न ये मुसलमानों की भलाई में है, न ये हिंदुओं की भलाई में। झगड़ा खत्म हो रहा है, अच्छी सद्भावना बनेगी तो ये फिर से वो खाई चौड़ी करने का प्रयास हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और एक नहीं, और एक पढ़ा है आपने। हाँ, तो नियम क्या है भाई? सरकार के लोग कोई होंगे तो बता सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारा क्या सेक्युलर और सोशलिस्ट वगैरह है ना सब, तो उसमें शायद मंदिर या कोई भी धर्म स्थान सरकार बनावे, इसका विरोध है, ये नियम नहीं है, ऐसा न करे, यही नियम है। तो सोमनाथ मंदिर बनाया, गृह मंत्री थे प्रत्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रपति गए थे उसका, लेकिन सरकार का पैसा नहीं लगाया है, समाज ने इकट्ठा किया, मंदिर बना, राम मंदिर बना, इतना बड़ा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बना। सरकार को कहा गया ट्रस्ट करो, ट्रस्ट किया, पैसा सरकार ने नहीं दिया, हम सब लोगों ने दिया। मुझे लगता है कि सरकारें आती जाती है, धर्म सदैव रहता है, रिलीजन्स भी लंबे चलते, भगवान के पास ले जाने वाले रास्ते होते, इनको इस राजनीति में संपर्कित नहीं करना चाहिए। और ये जो मंदिर बनाने की बात है, सरकार ने नहीं करनी चाहिए। हाँ, मंदिरों की सुरक्षा की व्यवस्था की, मंदिरों के पैसे का अपहरण रोक दिया, ये सब सरकार कर सकती है, करना भी चाहिए, परंतु अपने पैसे से मंदिर बनाना, ये ऐसा नियम है पता नहीं, उन नियमों की बारीकियों में जाके कुछ निकाला भी जा सकता है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि ये नियम के विरुद्ध हो गया। এদিনের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে জানতে চাওয়া হয় সংঘ প্রধানের কাছে। জানতে চাওয়া হয় এই পরিস্থিতিতে ভারতের কি করণীয়।
জবাবে মোহন ভাগবত জানান, আপনারা যা ভাবছেন আমিও তাই ভাবছি। আমার মনে হয় ভারত সরকারের কোনো পদক্ষেপ করা উচিত, তবে প্রশাসনিকভাবে কি করা যায় সেটা কেন্দ্রই ঠিক করবে। একটা সময় তো ওরা ভারতেরই অংশ ছিল, এখন সেখানে নানা ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। সরকার দেখবে সরকারের কি করণীয়। এদিন আরএসএস প্রধান বলেন, হিন্দুরা জোটবদ্ধ না হলে যে কত বড় বিপদ আসতে পারে তার আদর্শ নিদর্শন বাংলাদেশের ঘটনাবলী। তার কথায় হিন্দুদের শক্তি বাড়ছে। আগেও হিন্দু ছিল কিন্তু তাদের শক্তি ছিল না, এখন সেটা আস্তে আস্তে বাড়ছে। ভারতকে বড় হতে হবে, আর ভারত বড় হলে হিন্দুও বাড়বে। তাই দুনিয়ার যারা দুষ্টু লোক তারা ভয় পাচ্ছে, তাই তো নিরন্তর ভারতের অনিষ্ট করতে চাইছে। কি বলেছেন এ বিষয়ে সংঘ প্রধান, শুনুন। बंगाल में बढ़ता हुआ इस्लामिक कट्टरवाद, हिंदुओं के प्रति हिंसा की घटनाएं, बांग्लादेश की परिस्थिति, वहाँ की घटना और मुर्शिदाबाद की घटना, मुस्लिम घुसपैठ, ये सब जो बातें हैं उन पर वो तो बंगाल को प्रभावित कर ही रही है। करेगी क्या, ऐसा सवाल क्या है, वो कर रही है और अनिष्ट प्रभाव हो रहा है। इसलिए उसके बारे में आप सब लोग जो सोच रहे हो वही हमारा सोचना है, इससे अलग नहीं है। अब बांग्लादेश की सीमाएं जैसी खोली थी वैसे अभी खोलना कि नहीं, एक प्रशासकीय प्रश्न है, क्योंकि जो आएंगे उस सीमा से वो कौन आएंगे इस पर नियंत्रण होना चाहिए। सबके लिए खोलनी है, हिंदुओं के लिए खोली और कोई दूसरे ही आ गए, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा होता है दुर्बल के लिए और सबल के लिए, तो फर्क यही पड़ता है ना। रसगुल्ला बनाया, दुर्बल को दिया, टाइफाइड वाला है, वो और खराब हो गया। सबल ने खाया, वो और बन गया। तो जो उपाय करेंगे वो उपाय जिस पर किया जाने वाला है, जिसके लिए किया जाने वाला है, वो कैसा है इसको देख के वो करना पड़ता है। इसलिए विचार पूर्वक कुछ विचार करके बोलना पड़ेगा। अभी एकदम आपने पूछा तड़ से उत्तर ऐसा नहीं दे सकती, और ये मुझे भी देना नहीं है, सरकार को देना है। अब जो ये आपको लगता है, जो हमको भी वैसा ही लगता है, उसके बारे में अपने मन में संवेदना है, वो संवेदना सब में है क्या? सब में होती तो ऐसा होता नहीं। सब में संवेदना होनी चाहिए, और जो गलत परिस्थिति है उसको बदलने के लिए सबने मिलकर काम करना चाहिए। सामाजिक दृष्टि से देखने वाला मैं इसका उत्तर ऐसे ही दूंगा, हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है, फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा। লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।